आई हैव क्लियरली टोल्ड देम कि भाई देखो तुम्हारा प्री हो भी जाएगा क्लियर, मेंस क्लियर नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनीवन जो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेगा आंसर राइटिंग और वो 2-2.5 महीने में इतना एक्सपर्ट बन जाएगा कि शक्ति दुबे जैसे आंसर लिखना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। आदित्य पांडे, एथिक्स में आदित्य पांडे स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन यूपीएससी दैट ईयर इन 2023-24 एग्जाम, and in the first test he barely managed 31 marks out of 250। 31, कुछ भी लिखना नहीं आता। मोस्टली जो आपकी प्रोग्रेस होगी वो ग्रेजुअली होगी। Nobody is born topper, all of you become topper gradually over the years। There are certain topics that you are more familiar with within the same subject, तो आपके मार्क्स वहां भी फॉल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्क्स पे बहुत ज्यादा मत फोकस करना जो गैप्स है कि रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। सो द आइडिया इज दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू इंप्रेस योर मेंटर और एनीवन एल्स और इवन योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स। यू आर प्रिपेयरिंग टू क्लियर द एग्जाम। फॉर दैट योर मेंटर शुड बी लाइक योर डॉक्टर। when we go to a doctor, we don't hide anything. When we go to a lawyer, we don't hide anything. You should have the same relationship with your mentor. Don't hide anything. If there is a weakness, and that is the reason why you are here, that you need to ensure that you need to work on your weakness. So, online students, please also tell me your level of preparation. Deepak, Gaurav, Ravindra, Shikha, Sudhanshu. So, is there anyone here who has just started the preparation? Anyone here, online, offline, आप लोग को तो I think हो गया है course, right? Anyone who has just started the preparation, beginner? Okay, Shashank, you are a beginner, okay? Deepak is a beginner, Shikha is a beginner. Okay, so as I can see, most of you have already done something and some of you are beginners, right? So, ठीक है, see, it does not matter whether you are a beginner or if you have done your foundation course. The idea is that ki this course is applicable to all the categories of aspirant. We have in this course people who are already in the services, so who are here to score or to improve their ranks, and at the other end we have people who have just started preparation, ठीक है ना। The idea is that कि the kind of mentorship that we provide differs based on your level of preparation. For example, we cannot expect a beginner कि हम उसको बहुत advanced चीजें अभी बताएं, right? Similarly, we can't expect somebody who's already got a rank कि उसको हम ये बोलें कि NCERT भरो, right? So based on your level of preparation, we will decide what is the best course for you. ठीक है, तो सबसे पहले first of all I congratulate all of you for joining Nitya Pragati, and the name of the program is what we are trying to do here. Nitya Pragati means gradual progress, right? And this is what we are trying to aim here कि आपकी gradual process हो. We have almost 18 months left for your next year mains. तो उस 18 months में आप gradually कैसे improve करो, that is what we will try to achieve in this course. ठीक है ना। तो even if you are a complete beginner, the basic idea is that the first 3 months, first 6 months we will try कि हम कोशिश करें कि आपका बेस डेवलप करें, और जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, फाउंडेशन कर चुके हैं, we will straight away start with mains preparation from now on, because the whole objective is to make you mains ready by December end, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि what are the expectations that we have from you right now that you have joined the course. You have joined the course is one thing, but getting a rank is a different thing. तो ज्वाइनिंग द कोर्स और गेटिंग द रैंक के बीच में जो एक गैप है, उस गैप को हम तभी भर पाएंगे जब आपसे हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। बिकॉज टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, आवर रोल विल बी मैक्सिमम 20%, योर रोल विल बी 80%, ठीक है ना। इफ एनीबडी सेज कि कोई XYZ सिर्फ मेरी वजह से IAS IPS बना है, तो the person is doing injustice to the candidate itself, because ultimately it's your hard work that will help you with the cracking the exam, ठीक है ना। हाँ, हम अपनी तरफ से ये एश्योरेंस दे सकते हैं
कि जो डायरेक्शन हम दिखाएंगे और जो रिव्यू हम करेंगे, that will be an eye opener for you, that will help you improve. But the idea is that we cannot do hard work on your side. अब अगर आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ोगे तो whatever we say it will not matter. End of the day में what will matter is कि how much hard work you are putting in. ठीक है ना? तो सबसे पहले the first thing that we expect from you is, and उसके बाद we will also tell you what we will or what we are promising to deliver. तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. सो जो आपको वीकली टारगेट मिलेगा, कंसिडर इट एज सैक्रोसेंट. whatever be the emergency, whatever be the problem, ट्राई करना कि whatever weekly target has been provided to you, complete it. ठीक है ना? Now you can discuss with your personal mentor. You can discuss with your personal mentor कि how much heavy kind of target or light kind of target you want. Let's say you have a wedding to attend. Let's say your brother is getting married. So अब आपको मालूम है कि आप 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे. So talk to your mentor and make a plan accordingly. But whatever target has been provided to you, let's say आपको 3 घंटे का ही मिला है, 2 घंटे का ही मिला है, एटलीस्ट उस 2 घंटे 3 घंटे को आप इंप्लीमेंट करो. अच्छा, whenever you are free from the marriage, accelerate करो. ठीक है ना? I believe most of you are preparing full time. And if you are preparing it full time, this is technically your job. आप लोग full time हो? सब लोग full time हो? So technically, this is your job. When you go to a job, we actually, we sit for 8 hours, 9 hours, 10 hours. ठीक है ना? 8 hours is the bare minimum that we sit in any full time job. तो at least 8 घंटे तो आप बैठो यहाँ पे. Because if you are not sitting 8 hours also, it means that you are not doing justice with your life. Right? आपके लिए ये एक full time preparation है. और वहां पे अगर आप रविंद्र, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कोई दिक्कत नहीं, then you have to take out your weekends. Animesh Pradhan was one of my student and he used to study 5 hours a day, but in the weekends he used to extend. Right? So it does not matter if you are working or full time, but if you are a full time professional, I expect कि आप कम से कम 8 hours रीड करो रोज. ठीक है ना? अब लेट्स से अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाया उस वीक, नेक्स्ट वीक एक्सटेंड करो. बैकलॉग्स को कभी भी एक वीक से ज्यादा मत रखना, बिकॉज अगर आप एक वीक से ज्यादा बैकलॉग रखोगे तो फिर वो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी खाएगा, प्लस यू विल वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग कि इस बैकलॉग को मैं पूरा कैसे करूं. तो लेट्स से अगर आपका एक वीक बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहा, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, इट कुड बी बिकॉज ऑफ वेडिंग एक्सेट्रा, तो ट्राई ये करना कि नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स देके उस टारगेट को आप पूरा कर लो. राइट? लेट्स से अगर आप थर्सडे पे आ गए और आपको लग रहा है कि अभी आप टारगेट से बहुत पीछे हो, दैट शुड बी अ मोटिवेशन फॉर यू. एवरी टारगेट दैट यू हैव मिस्ड is, you have to think like this. Every target that you have missed, you have to think that this is making my journey tougher and tougher. This is decreasing my chances of cracking UPSC. ठीक है? Secondly, respect the deadline for assignment and answer writing. देखो, बहुत जरूरी है, और मैं ये चीज फिर से बोल देता हूं कि without mastering the art of answer writing, we cannot clear the exam. I have not seen anyone who have cleared the exam without mastering the art of answer writing. ठीक है ना? और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम वेट करते रहते हैं. लास्ट ईयर के कुछ, अभी तक भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी आंसर नहीं लिखा है. राइट? एंड आई नो दैट, आई हैव क्लियरली टोल्ड देम कि भाई देखो, तुम्हारा प्री हो भी जाएगा क्लियर, मेंस क्लियर नहीं हो सकता. बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनीवन जो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेगा आंसर राइटिंग और वो 2-2.5 महीने में इतना एक्सपर्ट बन जाएगा कि शक्ति दुबे जैसे आंसर लिखना स्टार्ट कर देगा. ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है ना? बिकॉज आंसर राइटिंग में बहुत ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है. राइट? एटलीस्ट 3-4 महीने तो आपको एक अच्छा आंसर लिखने में, कि एक अच्छा आंसर होता क्या है वो लिखने में आपको टाइम लगता है. तो आंसर राइटिंग में जो भी आपका मेंटर आपको बताए बेस्ड ऑन द टाइम आपके कितने. अच्छा, आंसर राइटिंग लिखना कैसे है
इसके लेक्चर्स मेरे आप देख लेना और उन्हीं टेम्पलेट्स को फॉलो करना आंसर राइटिंग में। और इनिशियली आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको 8 मिनट में लिखना, 10 मिनट में लिखना है, आराम से टाइम लो। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इवन इंफॉर्मेशन भी गूगल कर लो, लेकिन और इस सबसे पहले हम आपको एक पीवाईक्यू की वर्कबुक देंगे। उस पीवाईक्यू की वर्कबुक में सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स से इफ यू हैव कंप्लीटेड वन टॉपिक, लेट्स से यू हैव स्टडीड फेडरलिज्म, उसके बाद क्या करो, उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हैं आराम से टाइम लेके अटेम्प्ट करो, मेंटर को दिखाओ, ठीक है ना। बट द आइडिया इज दैट आंसर राइटिंग इनिशियली आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज हमारे पास हार्डली 9 महीने हैं और आपको 3-4 महीने तो बेस बनाने में ही लगेंगे आंसर राइटिंग का। थर्ड इज फॉलोइंग द स्टडी प्लान एंड टाइम टेबल, वो हमारी बात हो ही गई है। हाँ, फिलिंग द DAPS और डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट डेली एंड प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे whenever you give any टेस्ट, ठीक है ना, लेट्स से आपने कोई टॉपिक पढ़ा एंड यू हैव अटेम्प्टेड लेट्स से 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के। लेट्स से इफ यू स्टार्टिंग विद पॉलिटी, तो हम आपको टॉपिक वाइज MCQs देंगे फॉर योर प्रैक्टिस। लेट्स से आपने टॉपिक करा पार्लियामेंट, आपने रीड किया पार्लियामेंट की, आपने लेट्स से 25 MCQs सॉल्व किए। अब आप क्या करो, लेट्स से आपके उसमें 12 क्वेश्चन गलत हो गए और 11 सही हो गए और 3 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो जो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपको इन 6 गैप्स के अंदर भरना है। इस पे आई विल टेक अ सेशन ऑल्सो, डिटेल सेशन, तो वो आप उस समय मैं आपको बताऊंगा। ये 6 गैप्स हैं जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इन गैप्स के अंदर आपको फिल करना है। लेट्स से 2 क्वेश्चन इस वजह से हुए, 3 इस वजह से हुए, 5 इस वजह से हुए, 1 इस वजह से हुए। और ये भरने के बाद यू टेक इट टू योर मेंटर एंड टेक सजेशंस फ्रॉम योर मेंटर कि एग्जैक्टली मेरा जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो इस वजह से हुआ है और आप बताओ कि इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो अल्टीमेटली जो एक हमारा पूरा पर्पस है टू मेक इट मोर ऑब्जेक्टिव। जैसे अगर लेट्स से आप ऐसे गए बिना इसको फिल करिए गए, तो मेंटर के पास भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर and there is an information gap, so there is a chance of misdiagnosis. So that is why I want you to fill this and then take it to your mentor, so that mentor has complete information about your performance, and then based on that information he or she can provide you right inputs, ठीक है ना, right suggestions, ठीक है ना। So gradually आपको क्या है कि जब let's से आप पॉलिटी के टेस्ट दे रहे हो, let's से पॉलिटी के आपने 8 सेक्शनल टेस्ट दिए और आप देखो हर एक टेस्ट के बाद कौन कौन से गैप आपके फिल हो रहे हैं, कौन कौन से गैप इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आपका ये डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट, तो ये भी आपके पोर्टल पे आपको मिलेगी। एंड सो यू विल मीट वीकली विथ योर मेंटर, लेकिन डेली लेवल पे आपको ये भरना है कि आपने जो टारगेट्स दिए थे वो तो ठीक है, एक चीज तो वो हो गई, एग्जैक्टली आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है ना। तो और आफ्टर अ वीक व्हेन यू आर मीटिंग योर मेंटर, शो दैट टू योर मेंटर ऑनेस्टली कि भाई दिस इज व्हाट आई हैव बीन एबल टू डू, ठीक है ना, दिस इज अल्टीमेटली। और आप क्या कर सकते हो कि डेली बिगिनिंग में एक टू डू लिस्ट भी यहां पे डाल सकते हो कि भाई आज मेरा ये टारगेट है तो मेरे को इस चीज पे प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है ना। So ultimately, and after that, you can also rate your day कि भाई how productive you feel your day is. So whenever you are meeting your mentor, please show this sheet to him so that he knows कि आप कितने ठीक रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका DAPS, because accountability is the key, ठीक है। Similarly, next is maintaining patience and focus on improvement, not perfection initially. तो देखो I have seen the initial answers of more than 400-500 rankers जब वो start करते हैं लिखना, and I know that most of them don't write really well.
I mean, I can still vouch about Animesh Pradhan जब उसने पहला आंसर लिखा था अपना. Very basic, very non-structured, very generic, right? And over the time, gradually he improved and he, started writing those answers. Now you can see his copy, which has been uploaded. Similarly, there are people like Aditya Pandey, ethics mein Aditya Pandey scored highest marks in UPSC that year in 2023-24 exam. And in the first test, he barely managed 31 marks out of 250. 31, कुछ भी लिखना नहीं आता था. From 31, his marks improved to 139 in the UPSC. तो मोस्टली जो आपकी प्रोग्रेस होगी वो ग्रेजुअली होगी. Nobody is born topper. All of you become topper gradually over the years. ठीक है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर. देखो ऐसा भी होगा बहुत बार कि सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स ऊपर नीचे होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि वहां पे अगर आपने ढंग से रीड कर लिया है तो 80% क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते हो सेक्शनल टेस्ट में, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं. बट दिस विल नॉट बी द सेम इन केस ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में द क्वेश्चंस, इफ यू हैव सीन द PYQ, the questions are very random, and because the questions are very random, right, even a 60% strike rate or 60% marks is good enough. So अब let's say after polity, if you start with environment और आपका 80% आ रहा है और next में आपका 60% हो गया, तो इसका मतलब यही नहीं है कि you're not doing well or your marks are declining. Subject wise depend करता है. कुछ में मार्क्स ज्यादा आते हैं, कुछ में मार्क्स कम आते हैं. ठीक है ना? इवन सेक्शन वाइज भी देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट यू आर मोर फेमिलियर विद इन द सेम सब्जेक्ट, तो आपके मार्क्स वहां भी फॉल हो सकते हैं. ठीक है ना? तो मार्क्स पे बहुत ज्यादा मत फोकस करना जो गैप्स है कि रॉन्ग क्यों हो रहे हैं. ठीक है ना? प्लस और जो मैंने कहा कि परफेक्शन पे फोकस मत करो. इनिशियली फोकस करो कि आप चीजें इंप्रूव कर रहे हो. परफेक्शन तो आएगा धीरे धीरे ना, डे वन से थोड़ी ना आएगा. अब बहुत लोग क्या होते हैं, वेट करते हैं एक बार हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद आंसर राइटिंग एंड नोट मेकिंग. देखो बेसिक पर्पस जो हमारा है वो ये है कि हम आपको नोट्स देंगे. ठीक है ना? जो आपके बल्कि नोट्स हैं वो भी देंगे, जो आपके 1 पेजर हैं वो भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके नोट्स बनवाएंगे भी. क्यों बनवाएंगे जब आपको नोट्स दे रहे हैं? बिकॉज थ्रू टेलीग्राम एंड एवरीथिंग नोट्स लोग तक पहुंच जाते हैं, और वो सेम नोट्स अगर सबके पास पहुंच गए तो सब सेम आंसर लिखोगे. ठीक है ना? तो द आइडिया इज दैट कि द 1 पेजर दैट वी विल प्रोवाइड यू विल बी अ बेस, विल बी अ गुड बेंचमार्क फॉर यू, and you can use that 90%, but 10% आप उसके ऊपर ऐड करो अपने हिसाब से to make it more unique. अब सेम ही अगर वही लिखोगे, वही किरण बेदी का एग्जाम्पल, वही अशोक खेमका का एग्जाम्पल, तो क्या फायदा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नोट्स बने, आप नोट्स बनाओ और उसकी आप इंपॉर्टेंस समझो. whoever if you see, most of the toppers have relied on coaching notes, but over that, on top of that, they have also made their own notes, right? So ये सारा जो note making का process है, it should be over at least for mains by December, so that after prelims when you come next year, your notes are ready, because your notes are your biggest arsenal. ठीक है ना? आपके सबसे बड़ा वेपन. I mean, a good answer, a average answer and a bad answer, that depends on the kind of notes that you have made. Right? Then maintaining respect and decency towards mentors. Very important, because all your mentors, and this is the only mentorship program in the whole industry where all our mentors have appeared for interviews. Most of them have appeared for multiple interviews. Many of them have got selected in CISF, BSF, state PCS, right? So a lot of them have done a lot, and a lot of them are from IIT.
सो जो मेंटर्स का हमारा प्रोफाइल है, ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी, एंड दे नो द गेम वेल. So you have to maintain that level of decency with them. All of them have scored very good in GS. They have cleared, prelims. They have cleared mains, and they know the mistakes. Why उनका exam नहीं हुआ. So you have to maintain that level of respect and decency towards your mentors. Right? You should not misbehave with them. You should keep some patience with them. If you have any problem with your mentor, let's say there is lack of chemistry, or let's say there is lack of understanding, I will give you my email. You write it to me. But don't behave indecently with your mentor. Right? If let's say there is some problem, some issue with your mentor, write it to me. I will solve it. I will resolve it. But don't misbehave with them. Right? Ultimately, as we have seen, we come from this ट्रेडिशन जहां पे हमारे लिए गुरु जो है वो तो भगवान जैसा है, ठीक है ना. तो लेट्स ट्रीट इट लाइक दैट. इफ यू फील दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, दैट यू फील दैट यू perhaps are not getting the right kind of guidance, or perhaps there is some kind of communication gap, write it to me. Write it to me or write it to Sumit sir, who is the head mentor here. ठीक है ना, ठीक है ना. Then very important that avoid long gaps in preparation without valid reasons. अब होता क्या है ना कि अगर आप 2 दिन से ज्यादा, एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन, अगर आप 2 दिन से ज्यादा का गैप लेते हो तो आपका फिर वापस पढ़ने का मन नहीं करता. सो प्लीज इंश्योर करो कि डेफिनेटली यू शुड टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 18 months तक यू कैन नॉट प्रिपेयर विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक. You should take regular breaks, but the break should never be more than 2 days. More than 2 days के बाद थर्ड डे वापस आके पढ़ने का मन नहीं करेगा, एंड फिर वो वापस से मोमेंटम बनने में 2-3 दिन और चले जाएंगे. एंड यू कांट अफोर्ड. सी, यू फील दैट you have started early, but you have not, because we are just left with what, 15 months for prelims. बहुत ज्यादा नहीं है. अभी लोग 2-2 साल पहले स्टार्ट कर देते हैं, राइट. सो एवरी डे इज इंपॉर्टेंट. And understand this thing कि a lot of students 26 के प्रीलिम्स में फेल होंगे और वो उसके बाद 27 की तैयारी शुरू करेंगे. तो आप उनसे 3 महीना अर्ली हो, एंड यूज दीज 3 months एज योर एडवांटेज, क्योंकि वो 3 महीना प्रीलिम्स में देंगे. ठीक है, जो टेक्निकली मेरे को लगता है कि प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम. भाई उससे आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको रैंक नहीं आएगी आपकी. आप इस 3 महीने को यू कैन यूज इट स्ट्रेटेजिकली, ठीक है ना. सो अल्टीमेटली ये जो 3 महीने का गैप है, एडवांटेज है, इसको अच्छे से यूज करो. डोंट गेट कॉम्प्लिसेंट, एंड अल्टीमेटली इंश्योर दैट यू प्रिपेयर इट एवरी डे. सिमिलरली स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटिंग द एडवाइस एंड सजेशंस प्रोवाइडेड बाय योर मेंटर. सो बेसिकली देखो, नोट्स कैसे बनाने, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम्स में सॉल्व, जितने एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, टाइम मैनेजमेंट से लेके सब कुछ मैं आपको बताऊंगा थ्रू द सेशंस दैट वी विल हैव ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. उसको पर्सनल लेवल पे इंप्लीमेंट कराएगा आपका मेंटर. तो टेक्निकली मेंटर वही बोलेगा जो मोस्टली मेरे सेशंस होंगे. तो प्लीज उन सजेशंस को इंप्लीमेंट करो ऑन द ग्राउंड. सिमिलरली डू नॉट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग. ये मैं हर एक ओरिएंटेशन लेक्चर में बोलता भी हूं कि भाई आप लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी मोर देन 20. तो अब मेन चीज ये है कि आप में से मैक्सिमम लोग आई थिंक 20s में हो गए, अर्ली 20s, मिड 20s, लेट 20s. तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपके साथ 14-15 साल वाला जो है बिहेवियर किया जाए. स्पून फीडिंग से कोई आदमी रैंकर टॉपर नहीं बनता है. मेरे पास कुछ कुछ पेरेंट्स आते हैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप थोड़ा और स्ट्रिक्ट होइए उनके साथ. 2 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता है, कोई भी XYZ रैंडम, बिकॉज नोबडी, नो मेंटर इज विद एनीवन 24 आवर्स. वो बोल देगा, झूठ बोल देगा मेंटर को कि भाई हाँ आई हैव ऑलरेडी रेड, और नहीं पढ़ेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योर ये करो कि एक डायरेक्शन के लिए यू हैव अ मेंटर, बट अल्टीमेटली ट्राई करो कि मेंटर का मेजर काम है आपको स्किल सिखाना. एक चाइनीज प्रोवर्ब है ना कि यू गिव समवन और यू फीड समवन फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे एंड यू टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ.
तो आवर फोकस इज कि आपको हम स्किल्स प्रोवाइड करें। और टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ऐसे कुछ 40-50 बच्चे होंगे जो आज की डेट में मेंटर से बहुत ही कम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ आ गया है, उनको आंसर राइटिंग भी आ गई है, जो उनकी एक कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी वो भी चली गई है, वो प्रीलिम्स की उनकी सारी टेक्निक्स थी, सारी कुछ थी, सारे नोट्स थे, सब बन गए हैं, ठीक है ना। सो नाउ दे हैव रिड्यूस्ड देयर डिपेंडेंसी ऑन मेंटर। दे फील कि यार मेंटर के साथ बस बीच में एक बार मोटिवेशन के लिए बात कर लो, नाउ वी नो एवरीथिंग। दिस शुड बी योर एम, ये जो 40-50 बच्चे हैं, दिस शुड बी योर एम कि आपको आज से 10-12 महीने बाद, 12 महीने बाद लेट्स से, आपको हमारी जरूरत ही ना पड़े। हमारी जरूरत सिर्फ पड़े अगर आपको कोई चीज रिव्यू करानी हो, आपको सारा गेम समझ में आ जाए, राइट? बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बिकम द टॉपर। आप लास्ट डे तक बिल्कुल मेंटर के भरोसे नहीं रहोगे, इसका मतलब यह है कि आप अभी तक अपना गेम समझ ही नहीं पाए। चलो, नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट आंसर्स रेगुलरली। तो बहुत लोग क्या करते हैं, दीज आर थिंग्स विच आई एम सेइंग बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट बैच, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि भाई मॉडल आंसर रीड कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं और उसके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और लिखते नहीं है। स्ट्रक्चर बना के आप आंसर नहीं लिख पाओगे, मॉडल आंसर रीड करके आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आपको कहीं ना कहीं एक्टिव एंगेजमेंट करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट फुल आंसर। तो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, राइट आंसर्स रेगुलरली। नेक्स्ट इज फोकस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग होंगे जो यूपीएससी के साथ साथ और एग्जाम का भी दे रहे होंगे। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट यू आर गिविंग, फोकस ओनली ऑन यूपीएससी एंड दोज स्टेट सीएससी एग्जाम्स जिनका सिलेबस यूपीएससी से अलाइंड हो, ठीक है ना। बिकॉज आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेट मी प्रिपेयर फॉर आईएएस और लेट मी प्रिपेयर फॉर लेट्स से एक्स आरबीआई एग्जाम, आईएएस तो निकल ही जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है, उल्टा हो सकता है कि लेट मी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस तो निकल ही जाएगा अगर मैंने अच्छे से यूपीएससी तैयार कर लिया, ठीक है ना। तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर फोकस ओनली ऑन यूपीएससी एंड aligned SPSC exams, aligned where the syllabus is 90% same, right? 1-2 साल बाद लेट्स होप कि आपको जरूरत ना पड़े, बट लेट्स से 1-2 साल अगर आपका नहीं होता है, देन व्हाटएवर एग्जाम यू वांट टू गिव यू कैन गिव, वी विल आल्सो मोटिवेट यू फॉर दैट। बट पहले साल कंप्लीट फोकस ऑन यूपीएससी, कंप्लीट फोकस ऑन यूपीएससी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन एंड ओपननेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर I find 2, 3, 5 एस्पिरेंट्स जिनको मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि इनकी टॉप 50 रैंक आएगी, जो लोग मेंस लिख रहे होते हैं, एंड देन उसके बाद उनमें से मेंस भी क्लियर नहीं होता उनका। एंड द रीजन इज लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, बिकॉज अल्टीमेटली द होल आइडिया इज कि अब जैसे इसी बार हुआ था एक, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, बट देयर वाज दिस गर्ल हु showed me her answers like 10 days before the mains exam, and her answers were flawless, very good. I just thought that I've got my next Shakti Dubey, right? तो आंसर्स मैंने देखा एंड आई प्रेडिक्टेड कि भाई तुम्हारा तो ये है, इतने नंबर आएंगे, बहुत सही है, कुछ नहीं है, अब जस्ट ऐसे लिख के आना है। मेंस रिजल्ट आया, नहीं हुआ उसका मेंस में। आई वाज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो गया, मतलब यूजुअली माय प्रेडिक्शंस डोंट गो रॉन्ग। देन आफ्टर द रिजल्ट, few days after the result, she came to the office and then she told me, sir, I used to write these answers in 4.5 hours. That's your problem, right? Now you are out of the mains race. ठीक है ना। अगर आप मेरे को ये बात लेट्स से जून में बताती तो आई वुड हैव डन समथिंग टू इंप्रूव थिंग्स, राइट? आपने मेरे को इंप्रेस करने के लिए 4.5 घंटे में आंसर लिखे, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब एग्जाम में 3 घंटे में लिखने पड़े, क्वालिटी खराब हो गई आपकी, नहीं हुआ, right? So the idea is that you are not preparing to impress your mentor or anyone else, or even your parents or your friends. You are preparing to clear the exam. For that, your mentor should be like your doctor. When we go to a doctor, we don't hide anything.
When we go to a lawyer, we don't hide anything. You should have the same relationship with your mentor. Don't hide anything. If there is a weakness, and that is the reason why you are here, that you need to ensure that you need to work on your weakness. ठीक है ना? So whatever you are doing, let's say if you have written the answer by taking external support, after reading an article, you have written the answer. Or let's say you have, you wrote the answer in 1 hour. So in all these cases, clearly communicate to your mentor कि सर मैंने लिखा तो है, but मैंने source से भी देखा है, और I have taken more time. So then probably the mentor will tell you how to reduce the time, how to build up content, but never tell any lies to your mentor. You should always ensure that there should be clear communication and openness. Same with the targets. If you have not finished the targets, clearly tell them कि सर ये थी दिक्कत, इस वजह से नहीं हुआ. अगर लेट्स से आपने ये भी बोला कि सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, देयर वाज सम बिहेवियरल प्रॉब्लम, देन आल्सो से दैट. ठीक है ना? देन क्यूरियोसिटी एंड ग्रोथ माइंडसेट, वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी क्यूरियस. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब इस एग्जाम में आते हो, यू रीडिंग सो मेनी थिंग्स. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, आप लोग नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे या इवन आर्ट्स बैकग्राउंड के भी होंगे, तो देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इंजॉय करो यार. मतलब मोस्टली लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग है. बेस्ट वे टू read history is by connecting it with the present. So many things are happening. Let's say if you are reading about बारदोली सत्याग्रह, लिंक इट टू यार अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, क्या चीजें सेम है, क्या चीजें अलग हैं, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कितना सेम है, कितना डिफरेंट है. ठीक है ना? वॉट एवर इज हैपनिंग, or in history, same with geography. Let's say if you are reading in geography, let's say you're reading about western disturbance, then link it with यार जो अभी बारिश हुई है दिल्ली में. तो जितना आप curious, plus you can also Google if you want to add some extra information. It's always good to that, good to do that. ठीक है ना? मतलब जैसे let's say अगर कोई चीज मैं देख रहा हूँ, जैसे for example you have read about any personality in history, you should have more curiosity, Google more about him. ठीक है? But don't waste your time, don't go for PhD, but ये है कि definitely you should have that curious mindset कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है ना? Very important कि ये कैसे हो रहा है. ठीक है? Plus growth mindset. Growth means that in this whole journey, you should be prepared for gradual growth. अगर आप सडन ग्रोथ के माइंडसेट से आए हो, तो आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होगा, और डिसअपॉइंटमेंट से कुछ और नहीं होगा, बट यू विल लूज फोकस एंड एवरीथिंग. ठीक है ना? सिमिलरली treat UPSC preparation like a full-time responsibility, as I've already said. Then, as I've told you, academic honesty and authenticity, very important. Whatever, at what level you are, you have to tell your mentor. ठीक है? और lastly, avoid distraction from excessive sources and material. जो सोर्स हम दे रहे हैं, जो मटेरियल हम दे रहे हैं, go through that, read that, one stop solution. अगर हम बोले, अगर हमें लगेगा कि कहीं पे हम लैक कर रहे हैं कोई एक टॉपिक पे, तो वी विल डेफिनेटली रेफर टू यू अदर मटेरियल. वी आर वेरी वेरी ऑनेस्ट इन दैट. वी वांट यू टू रीड द बेस्ट सोर्स, बट आई बिलीव दैट द टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर वन पेजर नोट्स एंड ऑलरेडी वी हैव डूइंग सो. आई बिलीव दैट आपको उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं. ठीक है ना? नाउ व्हाट आर द डिलीवर्स फ्रॉम आवर साइड? तो पहली बात तो यही है कि जो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी प्लान मिलेगा. ठीक है? विच विल कंसिस्ट ऑफ योर व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड एंड वेयर टू रीड, प्लस योर टाइम टेबल कि एग्जैक्टली आपको हर दिन में कैसे अपना दिन डिवाइड करना है. सेकेंड इज एनेक्डोटेड एनसीईआरटीज. तो जैसे ये है आपकी, जैसे जो एनसीईआरटीज हम आपको देंगे, उसमें टेक्निकली क्या होगा कि इस तरीके से वो एनेक्डोटेड होगी कि जैसे मार्क है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या फिर यहाँ से कोई PYQ आया है यूपीएससी में या कोई और एग्जाम में. तो आइडिया इज दैट व्हेन यू रीड एनसीईआरटी इन दिस वे, तो यू आर नॉट मिसिंग इट आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये रहेगा कि अगर ऑरेंज से मार्क्ड होगा तो दीज आर द एरियाज फ्रॉम विच PYQ हैज बीन आस्क्ड। येलो से मार्क होगा तो दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज जहां से सवाल पूछा जा सकता है। ग्रीन मतलब प्योरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको रटनी है। ब्लू इज द टर्म्स एंड डेफिनेशंस एंड पीच इज स्टेटमेंट्स दैट साउंड एक्सट्रीम बट आर ट्रू। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी एनोटेटेड रहेगी। तो उससे आपका ये रहेगा व्हेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी यू विल डोंट और you will not miss out on important areas, plus you will read the NCERT smartly. ठीक है। थर्ड इज डेली लाइव आंसर राइटिंग। दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम जून। अभी आप पहले अपना थोड़ा बेस बना लो। जून से हमारी इस तरीके से डेली क्या होगा कि आपके हर एक मेंटर जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो आपके साथ बैठेगा और अल्टीमेटली 5 क्वेश्चंस आपको देगा टाइम के साथ और आपको लिखने हैं। उसके बाद क्या होगा कि अल्टीमेटली वी विल टेल यू कि एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना था। तो एवरी डे 1 to 1.5 आवर्स फ्रॉम जून वी विल बी गिविंग टू डेली आंसर राइटिंग। ठीक है। देन रिवीजन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो और इसमें से अगर आपको कोई भी चीज नहीं मिली तो प्लीज मेरे को मेल करिएगा। रिवीजन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट तो इस तरीके से जैसे हम आपको देंगे, ये हम आपको एक्टिव रिकॉल के लिए दे रहे हैं। जैसे लेट्स से आपने लक्ष्मीकांत को रीड किया और लक्ष्मीकांत को रीड करने के बाद आपने फंडामेंटल राइट्स 19 to 22 तक रीड कर लिया। अब टेक्निकली क्या होगा कि आप ये जो हम आपको देंगे वन लाइनर डॉक्यूमेंट को, इसको आप काइंड ऑफ गो थ्रू करिएगा और आप देखिएगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। अगर आप नहीं दे पा रहे हो देन गो बैक टू दैट टॉपिक एंड रिवाइज इट अगेन। ठीक है ना। जैसे काइंड ऑफ डज आर्टिकल 20 अप्लाई टू सिविल केसेस। तो ये सारे तो आइडिया इज दैट एक एक्टिव रिकॉल का तरीका है कि आपने यू हैव रेड अ टॉपिक, नाउ यू हैव टू सी वेदर यू आर एबल टू आंसर क्वेश्चंस और नॉट। wherever you are not able to answer, go back to the concept, revise it again. उससे ये होगा कि once you have moved from one concept to another, at least you can be sure कि now from this question, we can solve the question. ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज उसके अलावा हम आपको देंगे जो आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल है, दैट विल प्रोवाइड टू यू। एक और चीज हम आपको देंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जो हम अपने आपको बोला प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज, ये तो होगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि हम आपको टेक्निकली 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे एमसीक्यू के। तो उसका पर्पस ये होगा कि आप लेट से आपने एक कोई टॉपिक किया, तो उस टॉपिक करने के बाद आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको एमसीक्यू डॉक्यूमेंट देंगे उसको आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और इन गैप्स की वजह से रॉन्ग है, आपने उसको फिल किया एंड देन व्हेनेवर यू आर मीटिंग योर मेंटर शो इट टू हिम। ठीक है। तो आप रोज के लेट्स से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टॉक टू योर मेंटर एंड डिसाइड कि आपको कितने करने हैं रोज के। बट द आइडिया इज दैट वन पार्ट ऑफ योर डे विल बी ऑन एमसीक्यू सॉल्विंग एंड आंसर राइटिंग। चाहे आप एक ही आंसर लिखो पर लिखना जरूर है। ठीक है। इसके अलावा पर्सनलाइज टाइम टेबल, ये तो हम अब बोल ही रहे हैं, प्लस 4 मैंडेटरी मंथली 1-to-1 सेशन बाय योर पर्सनल मेंटर। एवरी वीक देयर विल बी 1 सेशन। देन ऑल स्टडी मटेरियल्स, प्रीलिम्स कम मेंस। तो आपको प्री का मटेरियल, मेंस का मटेरियल, मेंस के बल्कि नोट्स, मेंस के 1 पेजर नोट्स सारे हम आपको देंगे। प्लस there will be 18 dedicated prelims strategy and PYQ sessions by me that will start from January. We have clearly divided it कि हम दिसंबर तक मेंस करेंगे ढंग से और जैन से प्री करेंगे। तो 18 सेशंस होंगे। इसमें एग्जैक्टली आपको सब्जेक्ट तैयार कैसे करना है प्लस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देयर आर 64 टेक्निक्स दैट आई विल टीच यू। ठीक है। प्लस 20 मेरे लेक्चर्स होंगे ऑन आंसर राइटिंग दिस ईयर। ये इसमें लिखा है दिस ईयर आई हैव टेकन 27 ऑलरेडी। तो इसमें मैं आपको सारे आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स जो शक्ति को भी मैंने सिखाए थे और बाकी और टॉपर्स को सिखाए थे, वो सारे आंसर राइटिंग टेम्पलेट आपको मैं सिखाऊंगा।
इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और अपने मेंटर से रिव्यू कराइएगा। देन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स एंड मटेरियल दिस विल स्टार्ट इन अक्टूबर। इसमें प्री एंड मेंस दोनों रहेगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, एस्से टेस्ट, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और पीवाईक्यू आपके क्वेश्चंस फॉर मेंस। जैसे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। इस टाइप की आपको पीवाईक्यू वर्कबुक मिलेगी। जैसे लेट्स से आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ये चैप्टर कर लिया, इसके बाद इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज आए हैं आपको प्रॉपर लिखने के लिए स्पेस भी होगी उसमें, आप लिखो और शेयर इट विथ योर मेंटर। ये चेक नहीं होंगे, चेक मतलब फॉर्मली चेक नहीं होंगे, बट मेंटर के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मेंस के जो आपके होंगे टेस्ट वो आपके फॉर्मली चेक होंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। हाँ, एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडवांस ग्रुप सेशन बाय मेंटर्स। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, सो वी हैव 40+ मेंटर्स एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड पीपल। सो व्हाट वी डू इज कि हम उनसे कुछ ना कुछ टॉपिक पे सेशंस लाइक ग्रुप सेशन लेने को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज सेशन हुआ है सीसैट पे। सो दिस मेंटर इज एन आईआईटीएन एंड शी हैज स्कोर्ड 130+ इन सीसैट। तो नाउ शी इज टीचिंग सम स्किल्स ऑफ सॉल्विंग सीसैट। तो इस टाइप के हमारे करीब 30 से 40 ग्रुप सेशंस होंगे जो हमारे मेंटर्स लेंगे। लेट्स से कोई एक और मेंटर है हु हैज मेड वेरी गुड नोट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो एक आप लोगों को डिस्प्ले देगा कि देखो दैट्स हाउ आई मेड माय नोट्स, ऐसे नोट्स बनाने हैं। सो कंबाइंड आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा हमारी पूरी टीम का। ठीक है, बीच बीच में जो आपके टॉपर्स हैं उनके साथ भी हम आपका सेशन कराएंगे, लेकिन वो मैं यूजली अवॉइड करवाता हूं क्योंकि क्या होता है हर एक टॉपर अलग तरीके से बोलता है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि पिंच ऑफ सॉल्ट से आप इसको करो, जो आपको लग रहा है कि आपके सबसे ठीक है वो करो। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउ यू सी अभी 4-5-6 दिन में रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे टॉपर्स आएंगे नए। अब हर एक टॉपर एक अपना अलग तरीके से बताएगा, तो जो स्ट्रेटजी आपको ठीक लग रही है आप उसको यूज करना। हर एक टॉपर की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। आई हैव सीन पीपल क्लियरिंग प्रीलिम्स बाय अटेम्प्टिंग 98 क्वेश्चंस। आई हैव सीन पीपल क्लियरिंग प्रीलिम्स बाय सॉल्विंग 80 क्वेश्चंस, 75 questions. I have seen people scoring very high marks in GS by making diagrams in their answers. I have seen people scoring very high in GS not making a single diagram. So basically idea is that अभी बहुत सारे टॉपर्स आएंगे और मैं तो बहुत क्लियरली बोलता हूँ। जैसे शक्ति भी अब यहाँ पे आई थी लास्ट ईयर स्टूडेंट से बात करने, जो लास्ट, तो मैंने यही बोला था, मैंने कहा देखो शक्ति ने कैसे किया था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शक्ति के लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए नहीं है। तो ऐसे ही आपके साथ भी है कि whatever is applicable on you, whatever is your strength, based on that you have to take preparation. ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा तो मेजरली हमारा जो आइडिया यही है कि अगले 3 महीने में, नेक्स्ट 3 months में टेक्निकली हम प्री कम मेंस पे फोकस करें। अभी तो हम प्री कम मेंस करें, जून से हम लोग मेंस रेडी पे लगेंगे। तो हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको हम करेंगे जून टू दिसंबर, जैन टू में प्रीलिम्स रेडी, और उसके बाद तो फिर आपको मेंस करना ही है। ठीक है ना। अच्छा, मेजर फोकस हमारा क्या रहेगा? मेजर फोकस हमारा रहेगा कि हमको रीडिंग करनी है, प्लस नोट मेकिंग करनी है, प्लस आंसर राइटिंग करनी है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेंस। प्लस अभी के लिए आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो रोज के। ठीक है। अच्छा, कल 3 PM सुमित सर आपके साथ एक ग्रुप सेशन लेंगे और आपको एक इनिशियल टारगेट दे देंगे। सो 3 PM आपके पास मेल पे आ जाएगा उसका लिंक, टुमारो 3 PM। उसके बाद इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपका पर्सनल मेंटर के साथ भी सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, मुझे लगता है कि इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, anything more than 10 hours is exhausting because you are not here to, you're not here for 1 month, 2 weeks, 3 weeks. आपको 1.5 साल की जर्नी, मिनिमम 1.5 साल की जर्नी करनी है। आप 12 घंटे भरोगे रोज, एग्जॉस्ट हो जाओगे। आई डोंट वांट यू टू गेट बर्न आउट जब आपका सबसे ज्यादा जरूरत है एफिशिएंसी की और प्रोडक्टिविटी की।
तो प्लीज डोंट लीव इट एट दैट टाइम, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है निवेदिता, 3 महीने में आपका हो जाएगा। देखो 2 चीज छूट जाएगी, उसको हम जैन से कर सकते हैं ना, बट एटलीस्ट टिल में ट्राई करो कि मैक्सिमम कर लो। फॉर मैथ्स आदिल, आई बिलीव आई हैड अ स्टूडेंट लास्ट ईयर, दिव्यांग गुप्ता, यार 21 विथ मैथ्स ऑप्शनल। ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम मैथोक्रेट और समथिंग। तो आई थिंक एक बार आप वीडियो देखना मेरा उसके साथ, तो उसमें ही हैज मेंशन्ड द नेम ऑफ द मैथ्स वाले मेंटर। सो आई थिंक यू कैन गो टू हिम फॉर मैथ्स ऑप्शनल। फॉर एनसीईआरटी कैन वी रीड ओनली एनेक्डोट्स? पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी अगर आप बिल्कुल बेसिक पे हो। अगर आपका हो चुका है पहले फाउंडेशन, देन यू कैन ओनली रीड एनेक्डोट्स। दीपक, फाउंडेशन बैच के जो नोट्स है और हमारे जो हम आपको नोट्स देंगे काफी कुछ अलाइंड है, तो आप देख लेना, डुप्लीकेशन मत करना। यस यस शशांक, यू कैन कनेक्ट विद योर मेंटर, प्लस प्लीज टेक्स्ट पे बात करना, मतलब डोंट कॉल, बिकॉज ही माइट बी बिजी इन सम अदर सेशन। तो एक वीक के बाद जब आपका हो जाए सेशन, तो उस ड्यूरिंग द वीक टेक्स्ट पे उनसे बोलना, अगर ही विल बी फ्री तो ही विल ऑल्सो कनेक्ट यू ओवर कॉल ऑल्सो, ठीक है ना? आपको सारे मेंटर्स का फोन नंबर मिलेगा, तो देयर इज नो इशू विद दैट। यस यस अविरल, जो मेंस का फेज होगा जून से दिसंबर, उसमें आपको एक स्लॉट दिया जाएगा ऑप्शनल के लिए भी, बिकॉज अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुराग, यू हैव मेड नोट्स फॉर ऑल, सो प्लीज गेट इट रिव्यूड फ्रॉम योर मेंटर। अगर आपको लगता है, मेंटर को लगता है कि ठीक है, तो फिर ठीक है। यस यस कुमार, यू कैन मीट मी नेक्स्ट मंथ इन ऑफलाइन एंड शो मी योर आंसर, नो इश्यूज विद दैट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन अल्टीमेटली वेन एवर यू वांट टू कम ऑफलाइन, यू कैन कम ऑफलाइन एंड शो मी योर आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल गाइडेंस का कोई गारंटी नहीं है। अगर लेट्स से द ऑप्शनल सेम होगा मेंटर का, तो थोड़ा बहुत एक ब्रॉड दे सकते हैं गाइडेंस, बट दिस नो, दिस इज अ जीएस मेंटरशिप, ठीक है ना? देखो नोट मेकिंग पे ना, अभी एक मेरा लेक्चर है, आपके पोर्टल पे अपलोड हो गया होगा। उस लेक्चर को प्लीज देखो एक बार, एंड उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने, बाकी आप अपने मेंटर से डिस्कस कर लो। भार्गव, विद इन 48 आवर्स मेंटरशिप पोर्टल विल बी एक्सेसिबल, एंड बाय सैटरडे योर सेशंस विल स्टार्ट, ठीक है ना? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू क्लियर? ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना है इस बार। मुझे आई होप इस बैच से मेरे को नेक्स्ट शक्ति 2 में मिले, ठीक है? ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।